Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So, listen up, my dear kids. Actually, I'm going to tell you the importance of physical laws. Okay, importance of physical laws. क्या है? Physical laws means what? First of all, what do you mean by physical laws? Physical laws होते क्या है ना? Uh, these are the laws. These are the laws which explains the phenomenon taking place into nature. Okay. So basically, phenomenon क्या होता है? It's a event, natural event. Okay. So when natural events are taking place into nature. Okay. So to explain that, we need laws. Okay. Laws are, these are uh, these are true, these are true events, we can say. Means it should be true only, मतलब ये सच ही हो सकते हैं, ये फेक नहीं हो सकते. So the difference between law and theory, if you go to know the difference between law and theory, law will be always true, correct होता है, fine, and the theory may be going to either true or fake. या तो वो ये true हो सकता है या fake. Say for example, in particular point of time, the theory may be proven, है ना, true हो सकता है. In another point of time in future, ये theory fail हो सकती है. When this theory get fail, it means that the theory is fake, गलत है. You need modification for this. इसका modification चाहिए, one thing, or else you need a new theory. If any event, it cannot be explained, it cannot be explained by the fact, by the statement, okay, which should be true, है ना, वो assertion ही होना चाहिए. तो अगर वो नहीं होगा, so that theory will get failed. So law is one which by framing the idea in particular way, you used to tell that the whole event is true. तो उसको आप प्रूव कर देते हो कि ये ट्रू है. And this type of true ideas, it will be fit in all the occasions, in all the scenarios, in all the points of nature. तो यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे ये जो लॉज है ना, ये ट्रू बैठते हैं, फिट बैठते हैं. सो देन ओनली यू कैन कॉल इट एज लॉ. ठीक है. सो लॉज बेसिकली क्या होता है? दीज आर द थिंग्स which explains the phenomenon taking place into nature. मतलब ये कोई भी नेचर को क्या कर देता है, it will be going to either explain or define it. ठीक है, मतलब उसको क्या कर देता है, डिफाइन कर देता है. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉ. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ. सो लॉ क्या होता है? सही होता है, ट्रू होता है. एंड व्हाट अबाउट थ्योरी? थ्योरी आइदर में इट मे बी ट्रू और इट मे बी फेक. अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फेक है, सो फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट मे बी ट्रू, बट इन नियर फ्यूचर कहीं पे जाके अगर ये थ्योरी फेल हो जाती है, if this theory will get fail, definitely it needs modification by using new ideas, by using new theory,
ओके, न्यू थ्योरी प्रपोजल से आप क्या कर सकते हो, ओल्ड थ्योरी यू शुड डिस्कार्ड दैट. ओके, आर यू गेटिंग? फाइन. सो लिसन अप माय डियर किड्स. नाउ दिस इज ओवर. फिजिकल लॉस का इंपॉर्टेंस आपको पता चला. ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल लॉज आर देयर? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल लॉज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल लॉज? तो कितने टाइप्स हैं बेसिकली? सो देर आर टू टाइप्स. कितने हैं? टू टाइप्स. So we are categorizing physical laws into two. So first one is conservative physical laws. Second one is non-conservative. है ना? तो कंजर्वेटिव कौन से हैं और नॉन कंजर्वेटिव कौन से हैं? सो फर्स्ट वन, कंजर्वेटिव फिजिकल लॉज. कंजर्वेटिव फिजिकल लॉज कह लो या सिंपली कंजर्वेटिव लॉज कह लो, दोनों एक ही हैं. ठीक है ना? लॉ मीन्स बेसिकली फिजिकल लॉ ओनली, बिकॉज यू आर यूजिंग क्वांटिटीज. है ना? फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है. इफ इट हैज मास, या मतलब उसका एक प्रेजेंस आपको दिखाना पड़ता है. ठीक है, किसी मास के साथ. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. रॉन्ग परिजन. लिसन अप, आगे बढ़ेंगे, सुनो बच्ची. कंजर्वेटिव फिजिकल लॉज, these are the these are the laws which obeys law of conservation. तो ये बेसिकली क्या है? कंजर्वेटिव फिजिकल लॉज. These are the laws which obeys conservative laws having physical quantities these are the laws which obeys law of कंजर्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिख देंगे, ये सही रहेगा. कंजर्वेटिव लॉज फिर से रिपीटेशन अच्छा नहीं लगेगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैविंग फिजिकल क्वांटिटीज having physical quantities that involves into conservative phenomena. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. मैंने बॉयज को थोड़ा सा लंबा चौड़ा बता दिया था. सो दिस इज नाइस. These are the laws which obeys law of conservation having physical quantities that involves into conservative phenomenon. मतलब इसमें जो भी phenomena, ये physical quantities अगर conservatives रखती हैं, conservative means that quantity remains into its original form. It should be constant. तब हम क्या बोलेंगे कि physical quantities that is involving into the conservative phenomena. तो वहां पे वो फिजिकल क्वांटिटी जितना पहला दिया है वो बाद में भी उतना ही रहेगा. इट विल नॉट गेट लॉस और इट विल नॉट गेट गेन ऑन इट्स ओन. ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फिजिकल लॉस बोलते हैं. ओके, सो द सेकंड डेफिनेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव फिजिकल लॉज. इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कंजर्वेटिव लॉज का. कंजर्वेटिव क्वांटिटीज का है, कंजर्वेटिव लॉज का नहीं है. तो आपको जो इजी लगे
आप उसको मतलब उसको आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा उस लॉ को, ठीक है। दीज आर द लॉज which do not obey law of conservation, having physical quantities that do not involves, ठीक है, into conservative phenomena, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फिनोमिना क्या होता है? व्हाट इज बेसिकली कंजर्वेटिव फिनोमिना? Say for example, any quantity you're choosing, and you're choosing that quantity to have one particular phenomena, ठीक है। जैसे कि एक फिनोमिना मैंने लिया जहां पे एक बॉल को मैं मेरे हाथ से किसी हाइट पे फेंक रहा हूं, and again that ball is coming back to the same position. Try to understand my point, my dear kids. एक बॉल को मैंने फेंका और वो बॉल सीधा वापस आया, उसी हाथ में आके गिरा। now the uh, now the hand now the hand which is holding that ball, यहां से बॉल मैंने फेंका था, फिर वो बॉल आके सेम हैंड पे गिरा। so this ball is carrying, say for example, 20 joules of energy. So after reaching maximum height by that ball, when it come back to the same position, so that ball is carrying, same amount of energy. Are you getting my point, my dear kids? तो maximum height reach होने के बाद भी 20 joules ही है। तो पहले जब दे रहे थे उसको एनर्जी तब भी 20 joules था। After reaching, it is having same 20 joules. Yes. So this type of phenomena is called as conservative phenomena, जहां पे energy loss ना gain दोनों नहीं हो रहे हैं। So ऐसे लॉज को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फिजिकल लॉज बोलते हैं। सो दीज आर द लॉज विच ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैविंग फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है? एनर्जी, है ना। सो दैट इन्वॉल्व्स इनटू कंजर्वेटिव फिनोमेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल अगर हमको लेना है, इफ आई वॉन्ट टू कैरी एन एग्जाम्पल, फाइन, तो मैं क्या करूंगा? आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? ऑफ एनर्जी, है ना। सो दिस फिजिकल क्वांटिटी विच विल इन्वॉल्व इनटू द कंजर्वेटिव फिनोमिना, राइट। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फाइन। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल। मोमेंटम भी मैं क्या करूंगा? फिजिकल क्वांटिटी को लूंगा, एज वेल एज इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। So this physical quantity also involves into conservative. जितना इलेक्ट्रिक शॉक आपको एक प्लग से मिलता है, जब आप प्लग इन में उंगली डालते हो, तो जितना उसके पास है उतना आपको देगा वो, और आपको आपके बाल सीधे खड़े हो जाएंगे। So you know what, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर हुआ, जितना चार्ज वहां पे था आपको आके आ गया वो। So you are experiencing conservation of charges here, right? तो मोमेंटम क्या है? प्रेयर में आप खड़े हो, आपके फ्रेंड ने पीछे से धक्का मारा है, तो कितना आप आगे जाके गिरोगे? जितना उसने धक्का दिया है। सो वट एवर एक्सटेंट ऑफ मोमेंटम शी हैज गिवन और ही हैज गिवन इन बिटवीन बॉयज और इन बिटवीन गर्ल्स, तो उतना ही मिलेगा ना। मैंने समझो कि मैंने 2 मीटर तक जाने का धक्का दिया है, तो क्या आप 100 मीटर जाके गिरोगे? No, not at all possible. So whatever momentum I have provided to another body, the same amount of momentum will be gained by the front body. That's it. ठीक है ना? Okay. So this is what law of conservation. इसी को ही law of conservation बोलते हैं,
right? But when we were you were writing Parisian law of conservation of mass, that is wrong. You should write law of conservation of mass energy, because this type of conservation laws आर सेमी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेशन जिसमें क्या होता है, मास से एनर्जी को कन्वर्ट होता है एंड एनर्जी से मास को कन्वर्जन किया जा सकता है. ओके, सो दिस इज व्हाट कंजर्वेटिव फिजिकल लॉ. And in case of non-conservative physical laws, my dear kids, these are the laws, these are the laws which do not obey law of conservation, having physical quantities that do not involve into conservative phenomena. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे दैट विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फोर्स. तो कौन से क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करेंगे, फोर्स को, बिकॉज यू नो से फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग अ फोर्स टू दिस बॉडी. कितना दे रहे हो, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स दे रहे हो इस बॉडी को. कैसे, जस्ट बाय होल्डिंग दैट बॉल एंड यू विल ट्राई टू थ्रो दैट बॉल टू द वॉल. कहां पे फेंक रहे हो इसको, वॉल पे फेंक रहे हो, ठीक है. एंड वेयर इज द वॉल, वॉल इज समवेयर हियर. तो जब आप वॉल पे इस बॉल को फेंकते हो, इमेजिन दैट देयर विल बी एट दिस पॉइंट इन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस. कैसा वाला, इन इलास्टिक कोलिजन विल टेक्स प्लेस इन बिटवीन वॉल एंड बॉल, ठीक है ना. सो 50 Newton of force is on the body A. Wall is considered to be body B. So after hitting, ball comes somewhere here and falls at this place. Now the ball is carrying, say for example, 30 Newton. ठीक है, तो कितना वेस्ट हो गया यहाँ पे, 20 Newton. So 20 Newton is wasted either in the एयर मीडियम, उसका कुछ हिस्सा एयर मीडियम में गया होगा, कुछ मैक्सिमम हिस्सा वॉल पे गया होगा. सो द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी आर नॉट गेटिंग बैक आफ्टर हैविंग कोलिजन. ठीक है, तो फोर्स जितना दिया था उतना नहीं मिला, लेकिन हम कहने के लिए क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दैट इज व्हाई द रीजन व्हेनेवर यू थ्रो द बॉल at the wall, it will not come back to the same position. So it is due to non-conservative physical quantity you are acting with, right? Means आपने कोई बॉल लिया है और नॉन कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटीज यूज कर रहे हो, जैसे कि फोर्स है, एंड यू आर नॉट गेटिंग द सेम अमाउंट. द रीजन इज इन इलास्टिक कोलिजन. क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन. सो इस पे आप जब लॉज बनाते हो ना, कौन सा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसको आप क्या कहते हो, नॉन कंजर्वेटिव फिजिकल लॉज कहते हो. ठीक है ना. तो क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों, विच आर फिजिकल conservative physical laws and which are non-conservative physical laws. So we will move to the next page. Yes, fine. Now we will explain in detail about conservative physical laws. Yes, चलो one by one, है ना. Conservative physical laws. ठीक, so मैंने मार्क कर दिया. Now the first law we are going to take as an example is, पहला वाला कौन सा होगा, sorry, first one is law of conservation of energy. ठीक है, law of conservation of energy. So my dear kids, listen up. ये क्या लॉ है, एनर्जी, we are talking about basically energy. So this is what, this is a conservative physical quantity. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं conservative physical quantity, है ना. So what do you mean by that?
इसका मतलब क्या है कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब? सो बेसिकली कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी इज, इट इज द क्वांटिटी, it is the quantity which obeys, which obeys physical, फिजिकल कहने से अच्छा है डिटेल में लिखते हैं, which obeys conservative physical laws, है ना, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वी यूज्ड टू कॉल इट एज कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। सर फिर नॉन कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटीज कौन से हैं? इसी का थोड़ा सा क्या कहते हैं, घुमा फिरा के लिख दो। नॉन कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या होते हैं सर? ठीक है, सो दीज आर द क्वांटिटीज। क्योंकि यहां पे मैंने प्लूरल लिया है तो मैं दीज आर करके ले रहा हूं, यहां पे मैंने सिंगुलर लिया है तो इट इज करके लिया है। ठीक है, सो दीज आर द क्वांटिटीज which do not obey conservative conservative physical laws or law of conservation। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? we used to call it as, what we used to call it as, non conservative physical quantities। Sir, but we were talking of what, my dear kids? We were talking about law of conservation of energy के बारे में बात कर रहे थे सर हम लोग। तो चलो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी, what it states, energy neither, यहाँ पे एग्जांपल क्या लोगे? यहाँ पे द बेस्ट एग्जांपल इज एनर्जी लोगे, है ना। एंड व्हाट अबाउट हियर, द बेस्ट एग्जांपल इज फोर्स, sometimes work for inelastic collision, right? Yeah, Rakshita Kamble, this is not law, these are the quantities, these are not laws। देखो, let me tell you, जब भी मैं बोल रहा था, I was talking about physical laws, now these are physical quantities, try to understand my point। I'm marking out, you just see here, this is involving physical quantities, these are not laws, ये physical quantities हैं। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ऐसे बोल रहा हूं मैं। so once you see it properly, you should not get confused with the laws as well as physical quantities। energy neither be created, है ना, nor be destroyed, but it can be transformed from from one form to another। चलो मैं एक चीज बताता हूं आपको। so the best example, when you take a brick, and if you take that brick and keep that brick to the some height, from that height that brick is having the same energy from where you picked up to here। मतलब यहाँ पे जितना एनर्जी था उस ब्रिक में, उतना ही एनर्जी उस ब्रिक में कहां पे है? एट द मैक्सिमम हाइट। सो वहां से आप जब नीचे उसको लेके आओगे तब भी एनर्जी सेम रहेगा। सो बेसिकली क्या कर रहे हो? सी हियर माय डियर किड्स, आप यहाँ पे एक चीज को देख लो। हियर इज द टॉवर, ये आपका टॉवर है, ठीक है। नाउ हियर इज द ग्राउंड, है ना। सो नाउ यू आर हैविंग ब्रिक यहाँ पे, कहाँ पे? ब्रिक यहाँ पे है, with the black color I am going to depict that, ये ब्रिक है। so when you're keeping the same brick over here, अगर आप ये ब्रिक को यहाँ पे रख रहे हो, ठीक,
and when that brick is falling downwards यहाँ पे on and when it reaches to the ground, ठीक है, तो वो brick का जो energy रहेगा, the energy, it will be same. तो energy कितना रहेगा? It will be same. Now the brick when it is reaching from ground to maximum height, and when you give some push to this brick, simply to fall that brick यहाँ से लेके यहाँ तक, and after from this point to this point, the energy remaining, the energy residing into the brick, it will be same. तो brick में जो energy रहेगा ना बच्चों, that will be same. तो इसमें समझो कि मैंने एनर्जी इसमें दिया है 50 जूल, तो 50 जूल यहाँ पे भी रहेगा, 50 जूल यहाँ पे भी रहेगा, 50 जूल यहाँ पे भी रहेगा. सो द एनर्जी ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे इट विल बी नॉट क्रिएटेड ऑन इट्स ओन, और अपने आप भी कम नहीं हो रहा है, ठीक है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू another. मतलब here it is having, क्या है इसके अंदर, it is having potential energy, है ना. तो यहां से लेके जा रहे हो, तो बीच में क्या कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी, मींस यू आर वर्किंग ऑन इट, सो यू आर ऑफरिंग मैकेनिकल एनर्जी ओवर दिस ब्रिक. तो यहाँ पे जाके स्टोर हुआ, क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी अगेन, एंड व्हेन अगेन इट इज कमिंग बैक at the midpoint due to motion, it is carrying kinetic energy. देखो मैकेनिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी हुआ, then kinetic energy, then when it reaches back, come back at the surface, again it is carrying what, potential energy. So the transformation of the form of energy is taking place gradually, but the amount of energy stored inside that brick is same. So this is what is called as conservation. मतलब पूरा इवेंट क्या है, the whole event is all about by means bringing that brick from ground to maximum height and maximum height to again ground. So basically it is all about displacement. ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है by the brick throughout that whole event, there will be no change before before moving from the ground, and after reaching the ground the amount of energy remaining constant. तो इसी को कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है. So this is very much simple my dear kids. मैंने तो आपको बहुत ही clearly बता दिया what is basically law of conservation is all about, ठीक है. Now the second example of conservative physical laws, कौन सा वाला, law of conservation of momentum. कौन सा, momentum. Now before proceeding we should know that what is momentum. Momentum क्या है ना. So when it comes to the technical thing, तो momentum क्या लिखते हो आप, it is symbolized with p, है ना, small p, and the mathematical form of the momentum is p is equals to m into v. No issue, Priyanka Rathod, you can rejoin if you have any network problem, you can rejoin, no issues. Okay, so p is equals to mv. So listen up my dear kids, where m is the mass factor, okay, and v is the velocity factor, ठीक है. So if we want to know the meaning of the momentum, so basically if you are talking about momentum means it should be linear momentum. हम linear momentum के बारे में ही बात कर रहे हैं, means the momentum is taking place into the one dimension, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं. We are not talking about the two dimensional momentum, angular momentum के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. So if the velocity is produced in the mass of a body, if the velocity is produced in the mass of a body, then that body is said to be in momentum, ठीक है. तो what is momentum कैसे लिखोगे, momentum is one which momentum is one which that that the velocity is
produced in a mass, नहीं, in a नहीं आता है, in the mass, ठीक है, of a body, किसी भी बॉडी के मास में जब आप वेलोसिटी को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, यहां पे, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज सेड टू बी मोमेंटम, है ना। तो उसको आप P से इंडिकेट करते हो, छोटा वाला P, नॉट कैपिटल लेटर P, सो M into V, so this is called as momentum, ये तो पता चल गया। Now what is law of conservation of momentum, sir? So it states that, ठीक है, ये क्या बताता है हमको, it states that the momentum before collision, the momentum before collision and after collision, it remains, कॉमा लिख के, it remains, it माने क्या, we are referring out to the momentum, it remains constant, तो क्या पता चलता है, we come to know that constant. So if you are talking about collision, so इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेना ढंग से, देखो यहाँ पे क्या है, it states that the momentum before collision and after collision it remains constant. This is very short form of the definition of the law of conservation of momentum. इसको इलेबोरेट करें तो क्या बताते हैं पता है, the momentum between two bodies, मतलब कितने बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, two bodies, the momentum between two bodies before collision and after collision, it remains constant. Sir, how we are going to uh, write the momentum, sir? Say for example, we are taking an example of two masses, है ना, तो दो masses आप लेते हो, two spheres आपने ले लिए, fine, now you are taking these two masses, आपने ये दो masses को लिया, ठीक है, तो इस masses को क्या किया आपने, you took this masses over the surface, now wait, थोड़ा सा इसको expand कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, now say for example one mass is in motion, ठीक है, कौन सा वाला मास मोशन में है, द मास, फर्स्ट मास, ठीक है, ये फर्स्ट मास है एंड दिस इज सेकंड मास, ओके, सो फर्स्ट मास इज इन मोशन, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना करते हुए, फर्स्ट मास इज इन मोशन, सेकंड मास इज एट रेस्ट, ठीक है, मतलब इसका वेलोसिटी कुछ है, इसका वेलोसिटी कुछ है और इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो है, second mass is carrying velocity 0. Now two masses are having equal mass, दोनों masses कितने हैं, equal masses हैं. See here, collision means what, when two masses will come in contact with each other, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, collision कहते हैं, depending upon that contact is soft or hard, तो hard है तो ज्यादा collision कहलाएगा, okay, so soft है तो collision कम, and you can say simply pushing force, pulling force ऐसे कह सकते हो, ठीक है, so basically my dear kids listen up, when we are saying mass of two bodies, मतलब first mass and second mass is carrying the same mass, now say for example the mass is 5 kg, each mass carrying 5 kg, and the velocity of the first mass, velocity of the first mass कितना है, v1 है, वो कितना है v1, say for example 10 meter per second, okay, and the velocity of second mass is kitna, 0. If you see this, you will come to know that collision has not taken place here, so the momentum before collision, तो collision होने से पहले
ये बिफोर कोलिजन वाला टर्म है ना, कौन सा बिफोर कोलिजन वाला टर्म कहां पे देखने मिलता है, यहाँ पे, है ना। सो बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ टू मासेस कितना है सर, इसके मोमेंटम को मैं बोलूंगा P1 और इसके मोमेंटम को मैं बोलूंगा P2, है ना। तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज एक हैं, सो वी कैन से दैट वी कैन ऐड द मोमेंटम। लेकिन इस मोमेंटम को कोलिजन से पहले हो रहा है, तो मैं इसको कहूंगा इनिशियल मोमेंटम। स्टेट ऑफ पोजीशन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, रेस्ट और मोशन, बट आई कैन टेल दैट P1 प्लस P2, हाँ ठीक है, ब्रैकेट डाल दिया, इनिशियल मोमेंटम बोल दिया, ठीक। तो ये कितना है इनिशियल मोमेंटम, यू कैन सी हियर P means what, P means m into v, as I said in the last slide, mass into velocity, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको for first mass, so we were talking of what my dear kids, we were talking of लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम के बारे में बात कर रहे थे बिफोर कोलिजन। सो द इनिशियल मोमेंटम P1 इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, m1 into v1, ठीक है ना। सो m1 कितना है बच्चों, m1 इज सिंस द मासेस आर इक्वल ऑफ टू मासेस, सो दैट इज 5 kg, और वेलोसिटी कितना है, ये 10 है आपका, ठीक है। सो 50 P1 which is initial momentum of the first body before collision, तो 50 kg meter per second, kg जो है this is the SI unit for mass and meter per second is the SI unit of what, velocity. So this is the initial momentum for first mass, ठीक है। And the final momentum, not final momentum, initial momentum for the second mass कितना है, P2 is equals to, ऊपर लिखूंगा यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, so I am writing it upward, तो P2 is equals to m2 into v2, right, m2 कितना है बच्चों, that is 5, so velocity of the second mass that is 0, मतलब कितना हो रहा है 0 kg meter per second, so this is the initial momentum of the second mass, ठीक है। so when you are adding up you are getting that कि पहला वाला 50 है, then the second one is 0, so how much you are getting, you are getting initial momentum before collision for two masses, that is 50 kg meter per second, ठीक है। so this is for what, this is for initial momentum. Now that is before collision. Now after collision, after collision देखते हैं क्या होगा scenario, ठीक है। so the scenario will be if I take the diagram here itself with the red color, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, I'm going to take the red color वाले masses, ठीक है, चलो मैंने यहीं पे ले लिया, एंड ये भी यहीं पे ले लिया, ठीक। so these are two masses over the plane surface, है ना, तो ये प्लेन सरफेस पे मैंने ले लिया इसको, ठीक। नाउ आई एम शोइंग दैट, एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या चेंजेस करना पड़ेगा, वेट, सो आई हैव टू टेक दिस वन हियर, मींस आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन होने के बाद व्हाट विल हैपन, द डायरेक्शन ऑफ द मासेस विल चेंज, ये तो सेम डायरेक्शन में जाएगा because you are putting the force of the first mass in the positive x direction, तो positive x direction में पहले वाले मास का फोर्स था, तो उसी डायरेक्शन में सेकेंड मास का मोमेंटम होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट आफ्टर गेटिंग कोलिजन, सो द फर्स्ट मास विल रिटर्न और इट विल मूव अपोजिट टू द प्लस एक्स, है ना। तो जो फर्स्ट मास का है ना, पहला बिफोर कोलिजन कौन सा था, इट वॉज अलोंग प्लस एक्स, सो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा था, किसका, फर्स्ट मास का, ठीक है। सो फर्स्ट मास का फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा था, कौन से, प्लस एक्स डायरेक्शन में, सो द मोमेंटम ऑफ द सेकेंड मास विल बी इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, यही डायरेक्शन में जो फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक। नाउ बट आफ्टर कोलिजन ये क्या है सिनेरियो, this is after collision, you know what happened, so first mass is turning
इनटू माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो इससे क्या होगा, से फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गोइंग टू पुट द नेक्स्ट सिनेरियो, आगे वाला सिनेरियो मैं पुट करूंगा, ठीक, दैट इज आफ्टर कोलिजन। तो इसको आफ्टर कोलिजन सिनेरियो रखते हैं, ठीक। यू कैन सी, यहां पे आप देख सकते हो, सो हियर आर द टू मासेस। सो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, नाउ द डायरेक्शन ऑफ टू ऑफ द masses, ये इधर जा रहा है एंड दिस इज मूविंग ऑन दिस साइड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ लिसन अप, सो द masses फर्स्ट as well as second both are carrying equal masses, ठीक है। m1 is equals to m2 is equals to m which is equals to 5 kg, ठीक है ना। but the velocity 1 with the first mass कितना है, say for example it is having कितना इसका है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड से फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड नाउ इसको 30 मीटर पर सेकेंड गेन कर गया, ठीक। सो हो रहा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग, वी केम टू नो दैट वेलोसिटी कितना बोला था, 10 बोला था ना हमने, 5, वेट, चलो मैं थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट कर देता हूँ इसमें। तो मास तो सेम है, एक काम करते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट 10 न्यूटन, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके साथ से फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ठीक है, इसके साथ 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, ये ठीक है। आई वाज राइटिंग डायरेक्टली मोमेंटम, ये चीज मैं भूल ही गया था, ठीक है। तो ये वाला कंफ्यूजन लगा रहता है दिमाग में, तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रेगुलरली रखना पड़ता है आपको। एनीहाउ, so here is the velocity 4 meter per second and this one 6 meter per second, since both are in motion। पहले बिफोर कोलिजन क्या था, बिफोर कोलिजन था कि velocity 2 0 था और ये आपका velocity 1 10 meter per second था, है ना। but the masses were 5 kg, now also 5 kg only, लेकिन इसका जो मोमेंटम बनेगा 4 into 5 कितना होगा, that is 20 kg meter per second। this is what, this is the momentum ऑफ फर्स्ट मास। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम ऑफ सेकेंड मास क्या है, 6 into 5 कितना होगा, 6 into 5 30 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। बट इफ यू एड दीज थिंग्स, सिंस वी नो दैट दिस मोमेंटम इज आफ्टर कोलिजन, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, P1 plus P2, तो बेस इज द फाइनल मोमेंटम, है ना। सो कितना आ रहा है बच्चों, वी आर गेटिंग दैट 20 plus 30 that is equals to कितना 50 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ इफ यू सी दैट, पीछे वाला देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, इफ यू सी दिस P1 plus P2I कितना आ रहा है 50 kg मीटर पर सेकेंड, और इफ यू सी दिस फाइनल मोमेंटम 50 kg मीटर पर सेकेंड, it means that P1 plus P2 initial momentum is equals to P1 plus P2 final momentum is equals to कितना आ रहा है 50 kg meter per second। So we came to know that the values of both initial momentum before collision and final momentum after collision क्या मिला हमको, same मिला। So by this we came to know that the value is constant, the value is remaining keeping constant। So इसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। Are you getting my point, my dear kids? Law of conservation of momentum states that the momentum between two bodies before collision and after collision remains constant। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? Shall I move further? Yeah. Even if it move in the same direction, Deepa, even if it move in the same direction, doesn't matter, ठीक है, मोमेंटम तो सेम रहेगा,
ठीक है ना, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको कि अपोजिट मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दिक्कत क्या है? देयर विल बी नो दिक्कत. ओके, when you are assigning vector, no, then it matters. If you are only taking magnitude, then it doesn't matter. ठीक है, चलो listen up my dear kids. So the third one is law of conservation of electric charge. Law of conservation of electric charge. ठीक है, so फट से कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, we should not waste the time. What is this? It states that the electric charge neither be created nor be destroyed. ठीक है ना, but it can be transferred. You just see this term transferred, transform नहीं बोल रहा हूं यहां पे, transferred from one body to another. I'll give the best example is, ठीक है, अभी समझो देयर इज अ चेयर, यहाँ पे एक चेयर है, ठीक है, तो इस चेयर पे है ना, समझो someone has given the charge of 50 coulomb. कितना? 50 coulomb. If this chair is having, chair क्या है? It's a body, है ना, एक body है, one body, है ना. So if it is carrying charge means basically it is having static electricity. तो इसके पास क्या है? Static electricity है ना. So when a person is sitting, इसके ऊपर बैठेगा तब क्या होगा? The 50 coulomb of charge is transferred to which body? To another body. ठीक है ना, मिस्टर एक्स इज सिटिंग हियर, ठीक है, तो इस बंदे को कितना चार्ज जा रहा है? 50 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, तो 50 कूलम में से सर 50 कूलम नहीं जाएगा, ओनली 30 कूलम जाएगा सर, वरना 25 कूलम इस बॉडी में रहेगा, ठीक है, और 25 कूलम इस चेयर में रहेगा सर. नाउ यू ऐड बोथ, दोनों ऐड करो, is it increased or decreased? Tell me. नहीं. When you're saying that Mr. X is second body, ठीक है ना, and first plus second if you take as a one system, एक system करके लोगे, ठीक है, again this system is carrying how much? 50 coulomb of charge, है ना. तो पहला बॉडी और दूसरा बॉडी को आपने एक सिस्टम बना लिया, तो कितना आ रहा है उसमें चार्ज? चार्ज तो उतना ही है जितना पहले था, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या है? देयर विल बी नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज inside this single system. Even no charge has been increased on its own, so the charge is remaining constant. तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है. सो we'll move to the fourth one, law of conservation. Parijain, I'll come to your law of conservation of mass. It should not be mass energy relation, ठीक है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन ऐसे हमें लिखना है. सर व्हाई वी आर राइटिंग दिस वन सर? व्हाई वी आर नॉट राइटिंग मास? आई विल टेक वन एग्जांपल माय डियर किड्स. आई विल टेक अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है. तो पीस ऑफ पेपर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई एम गोइंग टू, ओके, दिस इज पीस ऑफ पेपर कैरिंग मास m, ठीक है ना. सो व्हेन आई बर्न दिस, ठीक है, when I burn this I am making a phenomena कि यार इसको burn कर रहा हूं, but before burning it is carrying mass m. After burning this will turn into hash. अब बताओ क्या mass same रहेगा या m dash होगा? Because the amount of mass is moved in terms of energy. What type of energy? Heat energy, है ना.
as well as light energy. तो उससे क्या होता है, mass have been removed, this much of mass have been removed. हम तो मास के बारे में बात कर रहे थे सर, लेकिन ये एनर्जी बन के निकल गया सर, और कुछ मास बचा है इन टर्म्स ऑफ हैश, है ना। तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं सर, वी कैनॉट से दैट मास जितना था उतना ही मास है, वी आर सेइंग दैट मास जितना था उतना ही मास विथ एनर्जी कन्वर्ट हुआ. So this is called as law of conservation of mass energy relation. तो इसको कैसे स्टेट करोगे आप लोग, यू आर गोइंग टू स्टेट इन दिस वे. कैसे, mass can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed some portion to mass and some portion to energy. Okay, here the portion of mass will be having different form, some portion with different form of mass, means you can say that the mass form will be different, ये form different रहेगा, ठीक है, इतना आप ये चीज कह सकते हो, and some portion to different energies. Okay, different form of mass कह सकते हो. I will just make modification here. So mass can neither be created nor be destroyed, but it can transformed from uh, it can transform from one form to it can transform some portion to another form of mass. चलो यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, another form of mass, ठीक है, to another form of mass from one form of some portion. चलो ये इतना मॉडिफाई कर दिया, from one form of some portion to another form of mass and some portion to different types of energy. ठीक है, चलो यहां पे कर दिया मैंने. I made an adjustment in this definition, my dear kids, थोड़ा सा और ज्यादा समझने के लिए. Mass can neither be created nor be destroyed, but it can transform from one form of some portion to another form of mass and some portion to different types of energy. ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन. क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर बोलते हो तो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज मास कैन बी डिस्ट्रॉयड. मास को डिस्ट्रॉय किया हुआ है यहाँ पे, कैसे, क्योंकि जितना मास को हमने जलाया था उतना ही मास वापस नहीं मिला, है ना. और इसी को आप समझो, जो जलाया हुआ है, मींस यू हैव बर्न्ड दिस पीस ऑफ पेपर, अगेन इफ यू रिवर्स द होल फिनोमिना, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो अगर रिवर्स करना चाहोगे भी तो सेम फॉर्म नहीं मिलेगा हमें. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फेल इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन बोलते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ only two terms are there. Shall I complete that, my dear kids? Unification and reductionism. पूरा चैप्टर हो जाएगा. Mass will not be constant, Vaishnavi, because heat energy and light energy से क्या होता है, if something you are burning means what, light energy क्या हो रहा है, emanate हो रहा है, and heat energy is moving out of that. तो energy अगर move कर रहा है तो क्या होता है, definitely you are moving the part of mass in terms of energy, है ना. So there are two important aspects in physics.
इन फिजिक्स, विच आर दोज, वो कौन से हैं? वन इज यूनिफिकेशन, है ना, एंदर वन इज रिडक्शनिज्म। ये दोनों क्या हैं? दीज टू आर आइडियाज माय डियर किड्स। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके आइडियाज हैं। सो बेसिकली व्हाट आर दीज, ये हैं क्या? ठीक है, तो मैं इसी में दोनों को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो unification, the first definition of unification is the process in which the single law is used to two wait to two different domains. सर लाइक डोमेन क्या होता है सर? लाइक टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन। सर ये डोमेन क्या होता है? बच्चों, डोमेन इज नथिंग बट इट इज अ नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया। तो दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बनता है? whenever you say someone is bad, तो अच्छा कुछ आपने देखा होगा कि अच्छा एक कैटेगरी में सेट करते हो, तो वो कैटेगरी में एक बंदे का क्वालिटी फिट नहीं बैठता तो उसको बुरे कैटेगरी में डाल देते हो। ठीक है, सो यू यूज टू डिवाइड इनटू टू, है ना? सो सेम वे व्हेन यू आर सेइंग दैट डोमेन इज कैटेगराइजिंग, कि डोमेन को मैं बांट रहा हूं। कैसे? दुनिया को कैसे बांटूंगा? मैं बोलूंगा द लाइफ ऑन द अर्थ, द लाइफ ऑन द अर्थ इज वन डोमेन, एक्सेप्ट द अर्थ without life, when you are in the space and you are seeing the whole scenario of the space as another domain। ठीक है, तो आपने एक तो दुनिया में रह के बोला कि यार अर्थ का एक डोमेन है, and when you are moving outside of the earth you are saying that you are out of the box and you are in the space, so whole earth as well as sun as well as different planets, that is another domain। तो वो बाहरी दुनिया हो गई, ये अंदरूनी दुनिया हो गई। so the you know uh, related to earth, that domain is called as terrestrial, है ना, and out of the earth that is called as celestial domain। तो दो डोमेन को हमने बांट लिया, and we are saying that the single law, कोई भी फिजिक्स का एक लॉ is used means is applied to two different domains, like एक ही लॉ को टेरेस्ट्रियल में भी लगा दिया और सेलेस्टियल में भी लगा दिया। सर फॉर एग्जांपल टेल मी example my dear kids, that is law of gravitation, law of gravitation, है ना? so law of gravitation को क्या किया मैंने? आई एम यूजिंग इट टू द टू डिफरेंट डोमेन्स। सो ऐसे मैंने दो उंगली पकड़ ली, ठीक है, देख रहा हूं देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने ढीला छोड़ दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टू फिंगर्स, ऐसे भी पकड़ूंगा अपने आप अट्रैक्ट होगा, पकड़ो ढीले तरीके से, you'll get that there is a force of attraction। so that is called as, we are applying particularly this phenomena in which law of gravitation, कि दोनों के बीच में law of gravitation act कर रहा है। gravitational force is existed between two masses, where on the earth when you see there is a force, there is a force between what? There is a force between uh, earth and sun। तो इसके बीच में क्या है? देयर इज ऑल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? तो ये हो गया आपका कौन सा वाला? ये हो गया आपका सेलेस्टियल डोमेन, है ना? एंड व्हेन यू आर होल्डिंग द फिंगर्स, आपने फिंगर्स पकड़े ऐसे, ठीक है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड यू आर असाइनिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू बोथ फिंगर्स के लिए एज वेल एज प्लैनेट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मींस ह्यूज ऑब्जेक्ट्स, बहुत ही बड़े। ठीक है, सो यू आर यूजिंग द टेरेस्ट्रियल डोमेन कंसेप्ट
and the law of gravitation is framing both. एक तो फिंगर वाला और दूसरा वाला celestial objects, ठीक है. So this is what unification, ठीक है. तो unification का और एक definition है बच्चों. Unification का और एक definition क्या है? So another definition of unification, है ना? What is that? The process in which two the process in which, चलो थोड़ा सा और इजी बनाते हैं, in which unifying two different forces into single, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं? सिंगल फोर्स. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिफिकेशन. उसको भी यूनिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, एंड मैग्नेटिक फोर्स. So by combining these two forces, we'll get what? Electromagnetic force, है ना? But let me tell you one thing, my dear kids. Electromagnetic force is observed into charged particles, between charged particles. But the same force existed into the nucleus. But the way of seeing that force is different. That force is called as weak nuclear force, ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स. क्योंकि फ्रेम अलग है तो इसको हम वहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. नाउ इसकी कनेक्टिविटी हमने किसके साथ जोड़ दी? वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो न्यू फोर्स वी गॉट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो वीक फोर्स. इलेक्ट्रो वीक फोर्स. सो इसको किसने डिस्कवर किया? ठीक है. Who established the relation between electromagnetic force and weak nuclear force? The scientist name called Abdus Salam. With him, another two scientists were there. ठीक है. So they got Nobel Prize. This Abdus Salam was from Pakistan, only intelligent fellow till now. ठीक है. तो you got my point, my dear kids. तो scientists tried to combine two forces. दो forces को उन्होंने क्या किया? Combine किया. So electro weak force. If say for example four fundamental forces को हमने एक कर दिया, if we tried a relation, एक इक्वेशन हमने बना दिया जिससे फोर फोर्सेस जुड़ रहे हैं. कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. If we establish a relation in between and if we find a equation, that equation will explain the origin of the universe. कहां से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, किस टाइम से स्टार्ट हुआ है. ठीक है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? क्लियर? चलो इसको मैंने यहां पे क्या किया? यूनिफिकेशन को मैंने क्लोज कर दिया. ठीक. नाउ द रिडक्शनिज्म कंसेप्ट, इसको बहुत छोटे में निपटाऊंगा मैं. ठीक है. रिडक्शनिज्म, द प्रोसेस in which larger part of a system is related to small constituent particles of that system. ठीक है. तो किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? लार्जर पार्ट ऑफ द सिस्टम के बारे में हो रहा है. तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में द प्रोसेस इन विच लार्जर पार्ट ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड टू स्मॉल कंस्टिट्यूएंट particles of that system. That explains uh, the properties of constituent particles
through which uh, the behavior of large part of a system can be explained. ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, you know what, I will give an example that a bird is fluttering, a bird is fluttering its wing in India, that brings take the attendance Vaishnavi Mutt, that brings tornado in USA. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई बर्ड यहां पे फ्लटर किया तो उसका इफेक्ट कहां पे होता है पता है? Here is the bird, so it is fluttering the wing. ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है इन इंडिया, तो उसका इफेक्ट होता है समवेयर इन यूएसए. ठीक है, वो भी किस फॉर्म में? टॉर्नेडो. कोई ये आ रहा है, क्या कहते हो आप, भूचाल आ रहा है, राइट? एंड से फॉर एग्जांपल समवन इज जस्ट जंपिंग इन इंडिया, द इफेक्ट मे बी गो सो फार, बहुत दूर तक जाएगा, एंड दैट कॉजेस अर्थक्वेक समवेयर. इट सीम्स लाइक जोक, ये जोक लग सकता है आपको. तो यही चीज है, लार्जर पार्ट ऑफ अ सिस्टम हम किससे कोरिलेट करते हैं? स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सिस्टम. क्योंकि अर्थ एक सिस्टम है, उसका एक एटमॉस्फेयर है, कहीं पे भी अगर लार्जर पार्ट के हिस्से में कुछ भी होता है तो उसका जो कनेक्टिविटी हम कहां पे करते हैं? एट द स्मॉलर पार्ट समवेयर इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम सिस्टम. ठीक है, कहीं पे उसने वहां पे डिस्टर्ब कर दिया तो उसका इंपैक्ट कहीं दूसरी जगह बड़ा होगा. So that process is called as the process of correlating the larger part of a system with the smaller constituent particles of the same system is called as reductionism. उसी को हम क्या कहते हैं? Reductionism. By this, the first chapter is over, my dear kids. So I will stop this first chapter. Thanks for watching and thanks for listening properly. ठीक है?